Hello students, as you know that we are all doing exercise 2.1. We have completed in the chapter linear equations in two variables. So here we are to do exercise 2.2. It is with the same concept what has been taught and we studied in exercise 2.1. The only thing changed in exercise 2.2, it is having the statement problem, the word problems. So first you have to form an equation and then you have to solve it as you have solved it in exercise first. First question says, if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. So what is the number? See what we have done. What we are going to do is, first of all, we have to assume that there is a number. So we have assumed that the required number to be x. And then he is saying subtract what we are supposed to subtract. If you have to subtract 1 by 2 from a number, एक number में से 1 by 2 subtract करना है हमें. So we will be taking x minus 1 by 2. That is our condition number 1. When he said subtract 1 by 2 from a number. Okay. Then he's saying and multiply the result by 1 by 2. जब आपने माइनस कर दिया तो उस रिजल्ट को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करो. तो जो हमारा x minus 2 आया उसको हमने 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. The result after getting the subtraction x minus 1 by 2 आया, that is our condition number 2, और उसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई करा. Then he is saying कि when you will subtract this and multiply by this, you get 1 by 8. You get means your answer would be 1 by 8. तो हमने condition 3 में क्या किया, that we have written 1 by 2 हमारा आया 1 by 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 जो हमने अब तक सॉल्व करा वो हमने इक्वल रख दिया 1 by 8 के. इक्वल इसलिए रखा बिकॉज ही सेड दैट यू विल गेट 1 by 8. Now we got this equation as we have done till 1.2.1. So now we have to solve this equation to get the value of x, and that x is what we have to find in the question. We have to find what is the number, and we have assumed that number to be x. So whatever value would we'll get is the answer of this question is the number. अब हम क्या करेंगे? There are various ways. See, one way is ट्रांसपोजिंग मेथड. द अदर वे इज अगर हमने इस 8 को रिमूव करना है तो जो डिवाइड हो रहा है तो हम बोथ साइड्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने 8 से लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करा और राइट साइड को भी, क्योंकि अगर हम दोनों तरफ 8 लेंगे तो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी. ऐसा करने से दिस 8 एंड दिस 8 विल गेट स्टक ऑफ एंड वी आर लेफ्ट विद 1 हियर. तो राइट हैंड साइड में कुछ हमारा लेस हो गया. इस 8 को इस 8 से रिड्यूस कर दिया तो हमारे पास बचा 1. वी हैव टेकन 8 बिकॉज 8 अगर हम लेते हैं तो 2 और 8 का दोनों का एलसीएम भी है और 8 पूरा हमारा रिड्यूस हो जाएगा. और इस 2 और 8 को भी रिड्यूसेबल है कि 2 1 2 एंड 2 4 8. नाउ दिस 4 लेफ्ट विद मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट x minus 2. तो जो ये 4 है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 by 2 के साथ भी. So I kept telling to all my students, this is the basic mistake every child kept on doing, कि 4 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 by 2 से करना भूल जाते हैं. जो आउटर नंबर है वो ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा. दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड फॉर एवर. लाइक ब्रैकेट में जो भी दो नंबर्स हैं, बाहर वाला नंबर, अगर ब्रैकेट में 3 भी टर्म्स हैं तो आप बाहर वाले नंबर को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इन द नेक्स्ट स्टेप सी, अब हमने जब 4 को x से मल्टीप्लाई करना है सो वी विल बी गेटिंग 4 इंटू एक्स वुड बी 4x. और जब हमने 4 को माइनस 1 by 2 से मल्टीप्लाई करा तो वी विल बी गेटिंग minus 1 by 2 into 4. This is another term. Okay, so either we will be taking this 2 to the left side and right side, or else what we can do, we can directly cut it here. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So then we will be left with 4x minus 2 is equals to 1. Now to remove this minus 2,
इस -2 को एक तरीका जो अभी मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था, आप डायरेक्टली प्लस -2 को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने पे यू विल बी गेटिंग +2। अनदर मेथड इज, जो भी आपके पास टर्म आपको हटानी है उसको अपोजिट साइन के साथ उसमें वहां पर यूटिलाइज करिए, बट ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने इसमें क्या करा, -2 था तो अपोजिट टू -2 इज +2, तो हम दोनों तरफ 2 को ऐड कर देंगे। तो हमने इधर +2 कर दिया और इधर भी +2 कर दिया। इससे क्या होगा, ये -2 और ये +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट में बचा 4x और 2 + 1 इज 3। देन जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इस 4 को मल्टीप्लाई को अगर हमें हटाना है तो इधर ट्रांसपोज मेथड और एल्स दिस मेथड की दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ उसका अपोजिट होगा डिवाइड, तो दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4x को 4 से डिवाइड करा तो बचेगा x, और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 3/4। सो thus the required number is 3/4. The method which I have used in this question, because this is a method also to be explained in the chapter NCERT book given, but students don't like this method because this is a little time taking method. Why to write this twice and then writing on the right side that adding 2 to both sides or dividing it with both sides with whatever number. So it's always better to use that transpose method because that's very convenient, easy and time saving method. बट वन क्वेश्चन तो एटलीस्ट आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि जो भी नंबर आपको हटाना है उसके अपोजिट साइन को लेकर उसी नंबर को दोनों साइड्स पर यूटिलाइज करिए। and you can do any of the method. Even in this question you can do with the method I have explained to you earlier. Question number 2 says the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Perimeter का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, if you remember, it's 2 multiply length plus breadth. तो आपको पेरीमीटर दे रखा है and he is saying its length is 2 meter more than twice its breadth. जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 मीटर मोर है देन इट्स ट्वाइस। तो अगर हम ब्रेथ को मानेंगे x, हमें निकालना है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, तो पहले हम ब्रेथ को लेट करेंगे कि हमारी जो ब्रेथ है वो है हमारी x, क्योंकि अगर हमने ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ हो जाएगी हमारी डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, दैट इज 2b या 2x, जो भी आप ले, x b a b c d whatever you can take, that's up to you. So if you are taking breadth to be x, तो उसका twice, that would be 2b and then 2 meter more to it, so 2b plus 2, that would be the length, and then we will apply it in the formula of perimeter. See how we are going to do this. Perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter given to us. लेट करेंगे हम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को पहले x या b, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2x plus 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम पेरीमीटर लेंथ पहले लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो गई हमारी 2x plus 2, and it's better always to write unit which is not written here, so I will be writing it that length would be 2x plus 2 meter, and also breadth is x meter. So we know that perimeter जो होता है वो rectangle का होता है 2 in bracket length plus breadth. So we will now put the values. So perimeter, in place of perimeter we will be writing 154. 2 जो आपका फॉर्मूला में 2 है, we will be writing that 2, and then लेंथ की वैल्यू डालेंगे। अब लेंथ थी आपकी 2x plus 2, so this is length plus breadth, that would be x. तो हमारी इक्वेशन बन गई। Now we have to solve it to find the value of x. So सबसे पहले आप ब्रैकेट के इनसाइड में देखेंगे 2x plus x आप सॉल्व कर सकते हैं, so that will be giving you 3x, और ये जो बाहर आपका 2 है, ये जो 2 है आपका, ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप उधर जाके डिवाइड भी कर सकते हैं। So 2 in bracket, अंदर पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करा, 2x plus 1x is 3x plus 2 is equals to 154. Then this 2 we are taking on the right hand side which is getting multiplied. ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हम राइट साइड पे ले आके डिवाइड करेंगे।
So 3x plus 2 is equals to 154 upon 2. So 2 ones are 2, 2 sevens are 14, 1 is left, then 2 sevens are 14 again. So 3x plus 2 is equals to 77. Let's continue. तो जो प्लस 2 हो रहा था 3x के साथ, उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा. सो 3x इज 75. और जो अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दैट विल ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड एंड इट विल गेट डिवाइड. On dividing 75 with 3, we will be getting 25 meter. I can write here, if you don't understand this because I have skipped a step, you will be writing x is equals to 75 upon 3. तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई इससे 25 मीटर. Now what was your x? X was your breadth, and you are supposed to find out the value of length as well. So breadth is x, that is 25 meter, and the length was 2x plus 2. So put the value of x in this equation. 2 and x means 2 multiply by x, that is 2 into 25. ये 25 जो है ये हमने कहाँ से लिया? This is the value of x which we have find out just now. Okay, and then plus 2. So 50, 2 into 25 is 50, and plus 2 is 52 meters. That is the length of the rectangular swimming pool. So in the end, in the statement line, always write the line of thus or hence, a concluding answer, that thus the length of pool is 52 meter and the breadth is 25 meter. I hope this question is clear to you. Move to another question. It is question number 4. Sum of two numbers is 95, and if one exceeds the other by 15, find the numbers. Exceeds means, this is something new for you, I guess. Exceeds means more. मीन्स अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर उससे 15 ज्यादा एक्सीड करेगा. तो इट्स वेरी सिंपल टू फॉर्म दिस इक्वेशन कि लेट अवर वन नंबर टू बी x, सो अदर नंबर वुड बी x plus 15, और उन दोनों का सम होगा 95. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. Let one of the numbers be x, then other number would be x plus 15, as I told you, because it is exceeds the other by 15, that means more than 15. And according to question, x, the first number, and then x plus 15 is equals to 95. So 2x, x plus x will become 2x. So 2x plus 15 is equals to 95. Now one by one you will be transposing the numbers. So first we will transpose 15. Can you answer me why we will not transpose 2 first? If you will be doing 2 first, it would be wrong. What is the reason behind it? Because first you have to clear the terms which are constants, and then you will be taking the numbers which are with variables. So 15 आप उधर ले गए, माइनस किया तो you will be getting 80, और 2 अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, then you will be getting divided when we will transpose it to the right hand side. So on dividing 80 with 2, you will get the value of x to be 40, and that is your first number, that was x is 40. And another number अपने जो निकालना था x plus 15, that is x की वैल्यू डालेंगे, 40 plus 15 is 55. Thus the two numbers, 10 line अपने आप लिखेंगे if it is not written in any of the question, that thus the two numbers are 40 and 55. जनरली बच्चे इनसे क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं, एंड दे फॉरगॉट कि जो दूसरी चीज हमें निकालनी थी वो वैल्यू डाल के निकालनी है, तो इट विल बी mistake generally students do, and this is a marks reduction point. So be careful what has been asked in the question, and be careful to write the line, concluding line. Now question number 5 says two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? Differ means the difference between them is 18. और two numbers की ratio अगर 5 और 3, तो हम assume करेंगे the first number to be 5x and the second number to be 3x. So let the two numbers be 5x and 3x. अब इन दोनों का difference दे रखा है हमें 18. तो it is very well clear कि 5x और 3x में से बड़ा number कौन सा होगा, because while adding it does not matter that which number you have taken in ones. By the commutative property you have studied कि आपने कोई भी नंबर पहले ले लिया, प्लस करते हुए it won't affect it, but माइनस करने में it will affect कि बड़ा नंबर जो है you have to write the bigger number
first. So it is very clear that 5x is the bigger number. So very clear equation is formed कि 5x और 3x को subtract करना है आपने. So 5x minus 3x and that would be equals to 18 because given it is differ by 18. So according to question 5x minus 3x is equals to 18. So 5x को 2x 3x से minus करके आएगा 2x. So 2x is equals to 18. 2 is getting multiplied. So on right hand side it will be divided. So x is equals to 18 upon 2, that would be 9. So the value of x is 9. The students, most of the students in the exam leave the question here only कि x निकालना होता है, x निकाल दिया and it's done. But no, यहाँ पर this I was explaining you in the previous question that generally students do this, but be careful to find the complete answer. You have to find the two numbers which you have assumed to be 5x and 3x. So put the value of x to find out the other numbers. The first is 5x, so that would be 5 into 9. Multiply क्यों करा हमने? Because 5x के बीच में जब sign नहीं है तो that means they are getting multiplied. So the first number is 45 and 3x is 3 into 9, that is 27. Thus the two numbers are 45 and 27. Question 6 says 3 consecutive integers. Do you remember what are consecutive numbers? Consecutive means in continuation, one after the other. 3 consecutive integers हमने लिए हैं that add up to 51. What are these integers? So it is again, आप एक बार ही ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत easy लगेगा आपको. Let करेंगे हम अपने first number को x, तो दूसरा number हो जाएगा उसमें +1, x + 1. Let the 3 consecutive integers हम ले रहे हैं. पहला हमने लिया x. अगर हमारा पहला number है x, तो दूसरा number हमारा हो जाएगा x + 1. क्योंकि suppose अगर आपका पहला number है 5, तो उसका consecutive integer आएगा 6. तो 6 कैसे आया? 5 में +1 करके. तो दूसरा integer आया x + 1. फिर दोबारा से x + 1 में +1 करेंगे तो हो जाएगा x + 2. तो जो हमारे 3 consecutive integers हैं वो हमारे हुए x + 1 and x + 2. और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है कि उन तीनों को एड अप करने पर आंसर आ रहा है हमारा 51. दे आर एड अप टू 51. सो वी विल राइट x, वी विल ऐड दीज 3 नंबर्स and then equals to 51 रख देंगे. So according to question, this also you need to write before forming the equation always. That means according to question, x plus x plus 1 plus x plus 2, ये तीनों टर्म्स हो गई हमारी, is equals to 51. अब x plus x ब्रैकेट में हमने लगाया है बट प्लस साइन है तो इट वॉन्ट इफेक्ट. तो 3x है तो 3x हो जाएगा x plus x plus x 3x plus 1 and plus 2, that will be plus 3. You can even write one more step in between while removing the bracket. So 3x plus 3 is equals to 51. Now we will be taking the first 3 or the second 3 first of all. We will be taking this plus 3 first. तो प्लस 3 उधर जाके -3 हो जाएगा. 3x is 51 minus 3. So 3x would be 48. Now we will take this 3 which is getting multiplied with x. वो वहां पे जाके डिवाइड होगा. x is 3 upon 48. So 3 ones are 3. 3 ones are 3. 1 is left. 1 and 8 is 18. 3 6 are 18. I hope this is clear to you. But here also again the answer is not yet finished. x आया भी हमारा 16. तो अब आप वैसे कॉन्जिक्यूटिव अपने आप भी बता सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर 16 के बाद के क्या आएंगे. दैट इज +1 एंड +2 जो हमने करा था स्टार्टिंग में. सो इट वुड बी x 16, x + 1 is 17 and x + 2 is 18. Thus the three integers, the consecutive integers which add up to 51 are 16, 17 and 18. This kind of questions you can have as a fun question as well. In mind you can ask each other, in mind you can solve it while playing at your home with your parents, grandparents. You can play such types of questions that कोई 3 numbers बताओ जिनको प्लस करेंगे तो 51 आएगा, लेकिन वो तीनों numbers एक साथ होने चाहिए लाइन में. Because might be your grandparents don't know the meaning of consecutive integers, so you can ask this same question as a puzzle in simpler form at home to have a fun question. And I assure you that your parents and grandparents are much more smarter than you. But don't take their test. Just have fun.
The next question is the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. अभी हमने consecutive numbers करे थे, consecutive means one after the other, but यहाँ पर one after the other number counting serial numbers नहीं है, because counting में वो बोल रहा है consecutive multiples of 8 means लगातार जो 8 के multiples आएंगे, तो यहाँ हमने counting नहीं लेनी है उसकी कि 8 9 10, 8 के multiples लेने हैं, तो 8 के 3 multiples हैं, तो 8 के multiples means 8 का टेबल, तो उसमें कितने का डिफरेंस आता है वन नंबर एंड अनदर नंबर में, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8. if we'll suppose, if we'll assume the first number to be x, तो सेकंड नंबर हो जाएगा x plus 8 और उससे नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x plus 8 में फर्दर 8 ऐड करना है, that would be x plus 16, because this is again we are having 3 consecutive multiples. तो अगर जितने भी multiples हमारे होंगे we will keep on adding the number 8 to find the multiples. So first of all we will be taking at the 3 consecutive multiples of 8 be 8x. पहला नंबर हमने लिया 8x क्योंकि हम चाहते हैं वो 8 का मल्टीपल हो, और अगर आप उसको डायरेक्टली x भी ले लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आंसर करेक्ट आएगा. दूसरा नंबर हमने लिया 8x में 8 प्लस करा और तीसरे नंबर में हमने 8x में 16 प्लस किया. सो वाइल एडिंग दिस 8x प्लस 8x प्लस 8 तीनों को, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बता रखा है दैट इन तीनों का सम, जो 3 नंबर्स हमने निकाले इन तीनों का सम आ रहा है हमारा 888. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स गिवन 888. सो हमने इन तीनों नंबर्स को प्लस करा और 888 के इक्वल लिख दिया. नाउ फर्स्ट वी हैव रिमूव द ब्रैकेट, सो 8x प्लस 8x कितनी बार आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स वी आर गेटिंग 8x, और 8x के x वाली टर्म्स को हमने एक तरफ लिख दिया 8x प्लस 8x and that we will be getting 24x. Then we will be having what other number, we are having 8 and 16, on adding 8 and 16 we are getting 24. Then we will take this 24 to the right hand side, it will get subtract, we'll get 864. Then this 24 जो मल्टीप्लाई हो रही है 864 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा. I will show its division. 24 3s are 72, we are left with 14, we have taken 4 from the dividend, then 24 6 are 144. So on dividing this 864 with 24 we are left with 36. So x is 36. So the first number ours is 8x, that is 36 into 8, it would be 288. Second multiple is 8x plus 8, so 36 into 8 plus 8. अब आपको इसमें दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 288 में 8 प्लस कर दीजिए 296 and then again add 8 in 296, you will be getting 304. Thus the required multiples are 288, 296 and 304. You can check your answer as well कि उसने आपको बोला था कि तीनों मल्टीपल्स का सम है 888, तो आप इन तीनों को प्लस करके देखिए क्या इनको प्लस करने पर 888 आ रहा है या नहीं. So this way you can check your answers also in the statement sums. Question number 9, the age question. The age questions are very important questions and I'm telling you this is a very important chapter. It will be the same topic will be there in class 10th also. 9th में तो आएगा ही, 10th में भी आएगा, और other chapters का part तो ये हमेशा रहेगा ही. So please be careful to do such types of questions carefully and the major linear equations concept. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. दो बच्चे हैं राहुल और हरून, इनकी एज की आपको रेशियो दे रखी है 5:7. तो जब भी हमारे पास रेशियो में कुछ आता है तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं 5x और मतलब इन टर्म्स ऑफ x. तो राहुल की एज हो जाएगी 5x और हरून की एज होगी 7x. Then he is saying 4 years later. Do you know the meaning of later? Is it पहले या बाद में? It is बाद में. 4 years later. तो 4 साल बाद इनकी क्या एज होगी? पहले आपको इनकी 4 इयर्स के बाद की एज निकालनी होगी, और वो उसमें कह रहा है 4 years later the sum of their ages will be 56 years हो जाएगी उनकी सम की एजेस. तो उनकी सम की एजेस को हम ऐड तो तब करेंगे, सम तो तब निकालेंगे जब हम उनकी 4 इयर्स के बाद की एज निकालेंगे. तो सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एजेस निकालेंगे, फिर 4 इयर्स के बाद की एजेस निकालेंगे,
और जब हम 4 इयर्स के बाद की एजेस निकाल लेंगे तो उसके बाद हम उनको सम अप कर देंगे. I repeat, first we will find their present ages with 5x and 7x, then we'll find their age after 4 years, and then उनकी एजेस के सम को करेंगे, सम करेंगे उनकी 4 इयर्स के बाद वाली एजेस को, तो उससे हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी. I made this table for you because rather than writing 4 long statements, I always prefer to make a table, and I also want you always do it in this manner. It won't make a mistake for you ever if you will do it this way. सबसे पहले हमने लिखा एक एज ऑफ राहुल, एज ऑफ हरून, और यहाँ पर हम ऊपर दो चीजें लिखेंगे. एक तो प्रेजेंट एजेस होंगी ऑलवेज, और उसके बाद एज जो भी आपके क्वेश्चन में रिलेटेड है, एगो या आफ्टर या लेटर, वॉट एवर वर्ड इज गिवन टू यू. सो यू विल बी राइटिंग एज आफ्टर 4 इयर्स, जो इस क्वेश्चन में था, लेट 4 इयर्स लेटर. तो हमने उनकी 5:7 से रेशियो से एज निकाली थी कि राहुल की एज होगी 5x और हरून में 7x इयर्स. I have written this to be 4x, but it won't be 4x. It has to be 7x. The age of Haroon, it is 7x. Okay. Then 4 इयर्स के बाद इनकी एज क्या होगी? अगर आज मेरी एज 20 इयर्स है, तो 4 इयर्स के बाद मेरी एज होगी 20 + 4. सिमिलरली राहुल की एज जो आज 5x है, तो 4 इयर्स के बाद हो जाएगी 5x + 4. वेरी सिंपल. जो भी प्रेजेंट एज है उसमें जितने इयर्स आफ्टर या बिफोर है वो प्लस या माइनस कर दीजिए. देन एज ऑफ हरून वुड बी 7x + 4. इट वुड बी 7x और उसमें हम 4 प्लस कर देंगे. ओके. अब हमें दे रखा है इसके बाद 4 इयर्स लेटर के बाद जो उनकी एजेस आई, उनका सम है 56 इयर्स. इट मींस अब हमें एजेस लेनी है विच इज आफ्टर 4 इयर्स, यानी कि ये वाली एजेस लेंगे हम जो 4 इयर्स के बाद आई है. ये आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि किस एज पर क्या कंडीशन दे रहा है वो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 में प्लस करेंगे हम 7x + 4 बिकॉज इसने क्वेश्चन में सम दे रखा है दोनों का, एंड दैट वुड बी 56. सो रिमूव द ब्रैकेट. 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56. x की टर्म्स को ऐड कर लीजिए. 7x + 5x would be 12x. 4 + 4 would be 8. Then this 8 will be transposed to right hand side and will get -8. So 12x would be 48. And then 12 will get divided on the right hand side. It would be 48 upon 12. X is equals to 4 because 12 4s are 48. Keep revising the tables at home these days. Now X आ गया, तो राहुल की एज थी. अब आपको जो एज निकालनी है वो आपने फाइनल आंसर में एज आफ्टर 4 इयर्स को नहीं निकालना है. आपने क्वेश्चन में देखना है, दोबारा से आपसे पूछा था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो जनरली प्रेजेंट एज ही पूछी जाती है. दैट्स व्हाई हम उसको एक्स की फॉर्म में लिखते हैं. तो राहुल की प्रेजेंट एज थी 5x, दैट इज 5 × 4 इज 20 इयर्स बिकॉज वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ x. एंड हरून वाज 7x, so it would be 7 × 4, that would be 28 years. This is the basic question of age, the very first question in for you. So please try to understand it once again, repeat the question and do try it on your own, because later on same type of question will be more complex. Let's move to next question. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 15 साल बाद आज से रवि की एज 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज होगी. व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें निकालना है हम उसको एक्स एज्यूम करेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि वुड बी x इयर्स. अब 15 साल बाद, तो 15 साल बाद पहले तो उसकी एज क्या हो जाएगी? इस एज विल बी, जो आज एज है उसमें 15 प्लस हो जाएगा, x + 15 इयर्स. देन ही इज सेइंग 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि की एज जो है will be 4 times his present age. तो जो उसकी प्रेजेंट एज है और जो उसकी एज 15 इयर्स के बाद है, इन दोनों में ही एक उसने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है. ये दो एजेस आई है हमारे पास, एक प्रेजेंट एज एंड दिस इज द एज आफ्टर 15 इयर्स. इन दोनों में एक रिलेशन है कि उसकी 15 इयर्स बाद वाली एज जो है वो आज की एज का 4 टाइम्स होगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x प्लस 15 जो 15 ईयर्स के बाद की एज है वो इक्वल हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज है x, तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा 4x। नाउ यू कैन सॉल्व इट। x को राइट साइड पर ले जाइए, माइनस x हो जाएगा, सो 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x, इट विल गिव यू 15 इज इक्वल्स टू 3x, और 3 जो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, x is equals to 15 upon 3 and it will give you 5. Hence the present age of Ravi is 5 years. और आपको इसमें present age ही निकालनी थी, 15 years वाली age नहीं निकालनी है, that is just to move ahead in the question and to make the equation. But hence और does में आप concluding line में वो ही निकालेंगे जो आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन को क्या पूछा है वो दिमाग में रखेंगे कि रवि की प्रेजेंट एज ही बतानी थी बस हमें, नथिंग एल्स। The last question for today's exercise is 15. You must try the rest of the questions and we'll discuss each and every question in the class. Don't worry. I have a total of rupees 300 in coins of denomination of rupees 1, rupees 2 and rupees 5. क्या मतलब है इसका? मेरे पास 300 रुपए हैं टोटल इन डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स। कौन कौन से टाइप के कॉइन्स है मेरे पास? 1 रुपी के कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है एंड 5 रुपीज के कॉइन्स है। अब मुझे ये भी पता है कि उसमें कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है, 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स है, आई डोंट नो। लेकिन उनके बीच में एक रिलेशनशिप उसने दे रखा है, दैट नंबर ऑफ 2 कॉइन्स is 3 times the number of rupees 5 coins. This is 2 rupees coins कि जो नंबर ऑफ 2 रुपीज के कॉइन्स है मेरे पास, दिस इज रुपीज 2 कॉइन्स। 2 रुपीज के जो भी मेरे पास कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स है द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो अगर मैं 5 रुपीज के कॉइन्स को x मान लूं तो 2 रुपीज के कॉइन्स 3x हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं मुझे 160। तो जो तीसरा नंबर ऑफ कॉइन है वो हम इन दोनों को प्लस करके 160 में से माइनस करेंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग अगेन। इसमें काफी सारी चीजें हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें लेट करेंगे नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स भी x। 5 को ही हमने x क्यों माना? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज के कॉइन्स का 3 गुना है। तो अगर वो उसका 3 गुना है तो पहले हमें जो सबसे बेसिक दे रखा था रुपीज 5 उसी को हमने x एज्यूम करा। तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे? अब जितने 5 रुपीज के कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स यानी कि 3x हो जाएगा। सो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3x। ये अभी जो हमने निकाला है ये उसकी कॉइन्स के नंबर निकल रहे हैं कि 2 रुपए के कितने सिक्के मेरे पास हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है वो नहीं ये निकाला अभी हमने, अभी हम सिर्फ नंबर निकाल रहे हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है 160। तो 3 तरह के कॉइन्स है मेरे पास, 5 के भी पता चल गए कितने हैं, 2 के भी पता चल गए, रह गए 1 के। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वर्बली इसको ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे पास टोटल है 25 कॉइन्स, ओके, उसमें से 10 कॉइन्स मेरे पास हैं 5 रुपीज के और 9 कॉइन्स है मेरे पास 2 रुपीज के। तो मेरे पास अभी टोटल कितने हो गए 5 और 2 रुपीज के? 19 कॉइन्स। और टोटल थे मेरे पास 25 कॉइन्स। तो जो 1 रुपी के मेरे पास बचे वो बचे कितने? तो मैंने पहले 5 रुपीज और 2 रुपीज के कॉइन्स को प्लस कर दिया, 10 प्लस 9 इज 19, और 25 जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है उनमें से माइनस कर दूंगी मैं, तो मुझे पता चल जाएगा 1 रुपीज के मेरे पास कितने कॉइन्स हैं। आई होप बाय नाउ यू ऑल आर रेडी विद योर आंसर्स, दैट इज 6 कॉइन्स। तो मैंने क्या करा, दोनों कॉइन्स को नंबर को प्लस करा और उसको टोटल में से माइनस कर दिया। सेम आई विल बी डूइंग हियर कि 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है मेरे पास, x प्लस 3x जो 5 और 2 रुपीज के कॉइन्स उन्हें प्लस करा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 में से माइनस कर दिया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो रिपीट द वीडियो और दोबारा से ये बात सुनिए। देन इट वुड बी 160 माइनस 3x प्लस x वुड बी 4x। सो 160 माइनस 4x, ये मेरे 1 रुपी के इतने कॉइन्स मेरे पास हैं। अब मेरे पास तीनों कॉइन्स के कितने कितने नंबर्स हैं वो मुझे पता चल गए, नॉट एग्जैक्टली बट आई गेट टू नो हाउ मेनी कॉइन्स डू आई हैव इन टर्म्स ऑफ x। अब मैं उनकी कॉस्ट निकालूंगी क्योंकि मेरे को टोटल कॉस्ट दे रखी थी 300 रुपीज,
तो मैं तीनों की अलग अलग कॉस्ट निकाल के उसको 300 के इक्वल रखूंगी, तो मेरी मेन इक्वेशन फॉर्म होगी। सबसे पहले अगर मेरे पास, आप बताइए वर्बली, इफ आई से मेरे पास 5 रुपीज के 3 कॉइन्स हैं, आई विल से मेरे पास, आई राइट इट फॉर यू, इफ आई एम सेइंग मेरे पास 5 रुपीज के 3 कॉइन्स हैं, तो मेरे पास ये कितने पैसे होंगे? I will multiply. I will be having 5 into 3 is equals to 15 rupees. अब इस केस में मुझे क्या दे रखा है कि मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन्स तो हैं, लेकिन मुझे उसका नंबर नहीं पता, वो नंबर है x। तो 5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट वुड बी 5x कॉइन्स, 5x उसकी कॉस्ट आ जाएगी, राइट। सो सेम वेज हम बाकी रुपीज 2 के भी और रुपीज 1 की भी कॉस्टिंग निकालेंगे कि जो हमारे कॉइन्स हैं 2 रुपीज और 1 रुपीज की, उनकी कॉस्ट कितनी है, क्या उनकी वैल्यू है। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करा, 5x आ गया। कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू रुपीज आई हैव रिटन, तो x को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा कि x कॉइन्स है 5 रुपीज के, तो हो गए 5x। 3x कॉइन्स है मेरे पास 2 के, रुपीज 2 के, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3x से, तो 3x इंटू 2 आ गया मेरे पास 6x। और 1 रुपीज के कॉइन्स है मेरे पास 160 माइनस 4x, तो 1 को 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉस्ट 160 माइनस 4x रुपीज ही आ जाएगी। दिस इज रुपीज, तो इन तीनों के साथ हम रुपीज जरूर लिखेंगे, और ये नंबर्स थे कि इतने कॉइन्स हैं, तो दैट डज नॉट मेक सेंस टू राइट एन यूनिट विद देम। अब क्वेश्चन पर वापस आइए हैं। अभी हमने पहले नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले और फिर हमने सब कॉइन्स की कॉस्टिंग निकाली। अब उसने हमें दे रखा था स्टार्टिंग में, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300। तो अगर मेरे पास टोटल रुपीज 300 है, तो जो मेरे पास पैसे भी आए हैं 5x, 6x और 160 माइनस 4x, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो आई विल बी हैविंग द सम टू बी 300 रुपीज। दिस विल फॉर्म according to question 5x plus 6x plus 160 minus 4x, ये तीनों हमारी टर्म्स आई थी, ये 4 टर्म्स हैं 3 कॉइन्स में, that would be 300. So first we will be taking the terms of x to be together, so 5 and 6x will be 11x, and 11x minus 4x will give you 7x, plus 160 is equals to 300. Then 160 will take to right hand side and it will get subtract 7x is equals to 300 minus 160. यहाँ पे equals to तीनों एक के नीचे एक नहीं है, but while writing it has to be one below the another. Okay, so 7x is equals to 140 और 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 2 14 0 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो हमारे 5 रुपीज के कॉइन्स थे x, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, नंबर ऑफ कॉइन्स नॉट देयर कॉस्ट। तो 5 रुपीज के कॉइन्स हमने लेट करे थे x, तो इट मीन 5 रुपीज के हमारे पास 20 कॉइन्स हैं। 2 रुपीज के हमारे थे 3x, यानी कि 3 into 20 is 60, and number of rupees 1 coins would be 160 minus 4x, that is 160 minus 4 into 20, 160 minus 4 into 2 is 880, so 160 minus 80 is 80. So I have 20 coins of 5 rupees, 60 coins of 2 rupees and 80 coins of 1 rupees. You can find their cost and you can check your answer as well, that their whole cost should come 300 degree. 300 degree, it's 300 rupees. So I hope all the questions are very well clear to you. Please do listen to this video once again carefully. Do try to do the questions on your own after listening to it once. And whatever questions I have not explained to here, we will discuss in the class. But I want you must try the leftover question once on your own. आप चाहे पूरा सॉल्व नहीं करें, रफ कॉपी में विदाउट स्टेटमेंट्स शॉर्ट में उसको सॉल्व करके देखें, so that it's for you, for yourself. Just try to get to know yourself what actually you understood, क्या आपको करना आता है. So do try it on your own. Till then, take care of yourself. Stay at home. Bye bye.